हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द puberty, or you can say the secondary sexual characters which are occurring in the male as well as in female. ठीक है, और आज का हमारा बच्चों जो टॉपिक रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as we are going to study in this lecture about the male reproductive system. As you know, the diagram of the male reproductive system I have already drawn on the board. Let us discuss their different organs one by one, because as per CBSE point of view, in the CBSE exams there are so many questions being asked on this diagram. Actually they will ask you about draw the well labeled diagram of the male reproductive system and label on it. तो क्या बताएंगे आपको? डायरेक्ट नहीं देंगे कि आप यहाँ पे टेस्टिस को लेबल कीजिए या यहाँ बल्बोयूथर ग्लैंड को आप लेबल कीजिए या यूरिनरी ब्लैडर को लेबल कीजिए या एपिडिडमस को लेबल कीजिए. दैट मीन्स द पार्ट्स विच आर you can say constituent of the male reproductive system. The question is rotated in different way. Rotate कैसे करेंगे? In that way they are being asked, draw a well labeled diagram and label on it the following A B C D. भी A पे आपको दीजिए सपोज the organ which produce hormones and secrete sperms. अब आपको फंक्शन बता दिया. You have to recognize the, or you can say identify the organ to whom which the particular given functions are belongs, and you have to label that part only. But some students, they are doing mistakes in these kind of questions. They simply draw the diagram and label all the parts, which is very wrong. They will not get full marks for that. Maybe they will get 50% or maybe 30% or 20%. So be careful students regarding these kind of, you can say, questions. And many things we will learn here, in what way the male reproductive system works and in what way the male gamete is formed and where does it forms. Okay, let us start with the male reproductive system. As you are able to see here, the testis, जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम. जो कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में एक स्किन का फोल्ड होता है विच लाइज बिलो द एब्डोमेन, ठीक है ना, एंड बिटवीन द थाइज. ये थाई है और इधर दूसरी थाई, इन दोनों के बीच में ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों. और ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि वासा इफ्रेंसिया जो एक कैपिट एपिडिडिमिस को बिलोंग करती है, एंड दिस कैपिट एपिडिडिमिस गिव्स राइज टू वासा डिफरेंस, एंड वासा डिफरेंस इज, यू कैन से, रोटेट ओवर द यूरेटर एंड एंटर इनटू द सेमिनल वेसिकल. ये एक ग्लैंड है बच्चों विच टेम्परली स्टोर द स्पर्म्स एंड एड देयर सीक्रेशन इनटू इट. और मैं कहता हूँ कि 60 to 70% जो सीमन का प्लाज्मा होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय दिस सेमिनल वेसिकल एंड इट जॉइंस हेयर विद द, यू कैन से, यूरेटर कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट. यहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज ए कॉपर्स ग्लैंड, पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड इज देयर. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है बच्चों, ध्यान रखना. कॉपर ग्लैंड पेयर में होता है क्योंकि एक साइड का हम दिखा रहे हैं. एंड दे फॉर्म ए कॉमन यूरिनोजेंटल डक्ट, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द पेनिस इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, विच इज कॉमन फॉर पासेज ऑफ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स, और यू कैन से सीमन. एंड यू कैन सी हेयर द टिप ऑफ द पेनिस, जो टिप पार्ट विच इज वेरी सेंसिटिव, विच इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, एंड ए स्किन फोल्ड विच कवर्स दिस ग्लैंड पेनिस is called prepuce. And here some erectile tissue which is called spongy tissue is present in the, you can say, penis, which help in the erection of the penis during the sexual intercourse. Actually what happen, these spongy tissue, they have some columns, and these columns when filled with the blood, these tissues become erectile and penis will erectile, and during intercourse orgasm will reach and this penis will produce sperms to the urinogenital system of the female. So this structure we are going to describe here.
Okay, one by one now we are taking. So let us start with the male reproductive system. It consists of male reproductive system. It consists of a pair of testes. It consists of a pair of testes. ठीक है बच्चों, ये मैंने सिंगल दिखाया है यहाँ पे एक साइड से, इसके दूसरी साइड में दूसरा टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। देन वासा एफ्रेंसिया, आफ्टर दैट ये वासा एफ्रेंसिया आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। वासा एफ्रेंसिया इज देयर विच इज यू कैन से कवर्स द टेस्टिस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो कवर करके रखता है इसको। फिर एपिडिडमिस, एपिडाइडिमिस, एपिडिडमिस होती है, दोनों टेस्टिस के ऊपर होगी, ठीक है ना। पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया प्लूरल हो जाएगा कि आप ये वासा डिफरेंस देख रहे हो, दूसरे वाली हो जाएगी तो पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया इज देयर एट दिस वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू द सेमिनल वेसिकल। बिल्कुल ऐसे याद रखना इनको, ये कहाँ खुलती है जाके, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल फर्दर किस में जुड़ जाती है, ठीक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट बना देती है यूरिनोजेंटल ट्रैक के साथ मिलके, ठीक है ना, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक है बच्चों, यहाँ पे यूरिनोजेनिटल ट्रैक बना देता है, ठीक है ना, विद द कॉपर्स ग्लैंड। और उसके बाद आपके पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगुलर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल। और उसके बाद पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड पेयर में होते हैं, एंड पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। और लास्ट में आप देख सकते हो ये पेनिस है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बच्चों याद रखने हैं, और इसी उसमें याद रखना है इनको सीक्वेंस में, ठीक है ना। क्यों रखना है, इसके एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब स्पर्म बनता है हाउ इट रीचेज टू द सेमिनल वेसिकल और हाउ इट कमिंग आउट फ्रॉम द पेनिस। तो हम सीधी सी बात करेंगे, जो टेस्टिस है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, इसके अंदर कुछ सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, स्पर्म्स बनते हैं, और वासा एफ्रेंसिया और एपिडिडमिस के थ्रू वासा डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स तक यहाँ पर टेम्परली स्टोर हो जाएंगे, नरिश होंगे, उसके अंदर कुछ म्यूकस ऐड होगी, देन दे फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा इधर से, एंड कुछ सिक्रीशन यहाँ कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोइथर ग्लैंड की भी आएगी, इस प्रोस्टेट ग्लैंड की भी आएगी, वो मिक्स हो जाएगी स्पर्म के साथ, और इस यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म्स आर दे कम्स आउट। तो इन दिस वे एक सीरीज में हम इन ऑर्गन्स को याद रखेंगे। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्टिस। हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आप दो स्पेलिंग लिखी देखोगे, एक तो आप टेस्टिस लिखा देखोगे और एक सिंपल टेस्टिस ये लिखा देखोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टेस्टिस, ये देखो, इसका मतलब एक टेस्टिस आपको दिखाई दिया, तो सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, ये सिंगुलर हो गया, इसका सिंगुलर टेस्टिस होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो ये क्या है, सबसे पहले आपको पता है इट इज अ प्राइमरी मेल गोनेड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको हम कहते हैं, और यू कैन से गोनेड्स। क्या है, गोनेड्स है, विच प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड सीक्रेट। क्या सीक्रेट करते हैं, विच प्रोड्यूस स्पर्म्स, जो क्या सीक्रेट करते हैं, स्पर्म सीक्रेट करते हैं, एंड सीक्रेट हार्मोन्स,
हार्मोन कौन सा सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट अ सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड हेयर। उसके बाद देखते हैं हम जो टेस्टिस है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये तो हमने बता दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, पेयर्ड होता है। ये भी हम देखते हैं टेस्टिस का मतलब यहाँ पे हम पेयर्ड ही लिखेंगे, क्या है ये? पेयर्ड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। एज दीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, विच लाइज बिलो द एब्डोमेन, लोअर पार्ट बिटवीन द थाइज, जो थाइज के बीच में होता है। तो टेस्टिस लाइज आउटसाइड पाउच ऑफ यू कैन से लूज स्किन। कहाँ होते हैं? टेस्टिस लाइज आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब यहां हो बच्चों की जो एब्डोमेन है उसके आउटसाइड में ये प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड इन पाउच ऑफ लूज स्किन, इन पाउच ऑफ लूज स्किन, जिसको क्या हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कॉल्ड, उसको नाम दिया जाता है यहां पे स्क्रोटम। और बच्चों ये स्क्रोटम बहुत जरूरी है बिकॉज ये यहां पे काम करता है कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्क्रोटम है इट इज़ वेरी एसेंशियल, क्यों? क्योंकि ये थर्मो रेगुलेटर का काम यहाँ पर करता है, विच हैंग्स बिटवीन, इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्क्रोटम विच हैंग्स बिटवीन थाइज, जो थाइज के बीच में हैंग करता है, ठीक है ना, बिटवीन द थाइज। एंड काम क्या करता है? स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर, जैसे मैंने बोला। क्या काम करता है स्क्रोटम? स्क्रोटम एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर, कि इसका मतलब क्या होगा कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, उसको ये मेंटेन करता है बाय कीपिंग टेम्परेचर, बाय कीपिंग टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बिलो आवर बॉडी टेम्परेचर, बिलो दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बिलो दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है तो टेस्टिस का कितना होगा? वो कितना हो सकता है टेस्टिस का? बिलो दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, तो वो कितना हो सकता है? या तो वो 36 होगा अगर 2 है, तो 35 होगा अगर 3 है, तो कितना होगा? 34 होगा। यानी कि हमारा जो स्क्रोटम होगा या जो टेस्टिस होंगे उनका टेम्परेचर या 36 होगा, 35 होगा या 34 हो सकता है। तो इसको ये मेंटेन करता है स्क्रोटम, ठीक है बच्चों। ए लोअर टेम्परेचर इज असेंशियल, हम कह सकते हैं ए लोअर टेम्परेचर इज असेंशियल, किसके लिए असेंशियल है? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी, असेंशियल है, ठीक है ना। टेम्परेचर इज असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स, असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड हम ये कहते हैं कि जो अब स्पर्म बनते हैं उसका जरा हम आपको डिस्कस करते हैं कि स्पर्म्स बनेंगे कैसे। कि टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस, ईच टेस्टिस हैज ए नंबर ऑफ सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, ईच
testis, each testis has a number of seminiferous tubules. ये seminiferous tubules क्या है? These are the tubules present in the, you can say, testis, जिनके अंदर spermatogenesis होती है. Embedded in कि जो टेस्टिस हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है बच्चों. एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स, इनका काम क्या हुआ? एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना. और फिर इनमें दूसरे काइंड के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेडिंग सेल्स. कौन से सेल्स? लेडिंग सेल्स आर देयर. ठीक है ना. लेडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज. अब जो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बोला, उन कनेक्टिव टिश्यू में क्या लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इन कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है ना. कि उन कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, विच सीक्रेट्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. आपसे एक नंबर में पूछ लेंगे कि नेम द सेल्स विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन. सो दीज सेल्स आर द टेस्टोस्टेरोन. अगर मैं आपको डायग्रामेटिक दिखाऊं इसमें, तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं इसका डायग्राम सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का. सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम कि इस तरह से सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी. ठीक है ना. और यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू होंगे. ठीक है ना. दीज आर द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है. और इनके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर सेल्स होते हैं ऐसे, और यहाँ बीच में स्पर्म्स बनते रहते हैं नए. स्पर्म फॉर्मेशन, दीज आर द स्पर्म्स. और स्पर्म्स यहाँ से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसमें? इस वासा इफ्रेंसिया के थ्रू एपिडिडिम्स में. और यहाँ पर क्या होंगे? कुछ लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे. दीज आर द लेडिंग सेल्स. तो ये यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू हो गया. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक विजुअलाइजेशन इस डायग्राम का ये होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है? दे आर प्रेजेंट नंबर ऑफ में 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 नंबर होता है. एक होती तो बहुत सारी है कंपार्टमेंट में. एक कंपार्टमेंट के अंदर ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं विच आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. इसमें कनेक्टिव टिश्यू एम्बेडेड होते हैं जिसके अंदर लेडिंग सेल्स होते हैं. और ये जो लेडिंग सेल्स है दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है दे सीक्रेट स्पर्म. क्लियर? चलिए अब उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं जो अब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर जो रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के आपके फंक्शन पूछे जाएंगे. तो टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है बच्चों, कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और दूसरा पबर्टल चेंजेज इन बॉयज, पबर्टल चेंजेस इन बॉयज, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इनको ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही क्या करता है?
रेगुलेट करता है। ये हमारे पास इसके फंक्शन हो गए। तो इस तरह से बच्चों हर पार्ट हमने इसका डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। नाउ सेकंड टाइप पे हम आते, सेकंड ऑर्गन पे हम आते हैं अब, एपिडिडमिस, ठीक है ना। एपिडिडमिस सेकंड ऑर्गन, एपिडाइडिमिस, ये याद रखना है स्पेलिंग का बड़ा, ठीक है ना। अब एपिडाइडिमिस क्या है? ईच टेस्टिस ओपन्स इनटू अ लॉन्ग कोयल ट्यूब्यूल विच इज 4 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ईच यू कैन से testis opens into, ठीक है ना, ए लॉन्ग कोयल ट्यूब्यूल, ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब्यूल 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है ना। लॉन्ग थ्रू, किसके थ्रू खुलती है जाके? 12 to 14 फाइन ट्यूब्यूल्स, 12 to 14 फाइन ट्यूब्यूल्स। ये फाइन ट्यूब्यूल्स मैंने बना रखे हैं। थ्रू दीज फाइन ट्यूब्यूल्स, उनको क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? कॉल्ड वासा एफ्रेंसिया। इस वासा एफ्रेंसिया के थ्रू ये एपिडिडिस में जाके ओपन होती है। एंड द लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एपिडिडमिस। और ये जो लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हो इज कॉल्ड एपिडिडमिस। द लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एपिडिडमिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस हम इसको कहते हैं। विच इज फोल्डेड एंड कॉम्पैक्टेड। फोल्डेड है, विच इज फोल्डेड एंड कॉम्पैक्टेड अलोंग। ये आप टेस्टिस का टिप देख रहे हो और इसका बेस देख रहे हो, तो उसके साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में है, साइड से है, यानी कि पूरे पे है, ठीक है ना। मीन्स अलोंग द बेस साइड, अलोंग द बेस साइड, बेस से लेके और साइड में, ठीक है ना। एंड यू कैन से हेड ऑफ द टेस्टिस, बेस साइड एंड हेड ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के हेड के ऊपर तक ये प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या रहेगा? एक्चुअली इट स्टोर्स एंड नरिशेस द स्पर्म्स। इसका एक ही फंक्शन है बच्चों, याद रखना है कि जो एपिडिडमिस है इसका क्या फंक्शन रहेगा? इट स्टोर्स एंड नरिशेस द स्पर्म्स। इट स्टोर्स एंड नरिशेस द स्पर्म्स। ये स्पर्म को स्टोर रखती है और उनको नरिश करती है, नरिशमेंट, कि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑर्गन इज वासा डिफरेंशिया। यहाँ से देखिए, अब ये एपिडिडमिस होगी, अब इसके बाद यहाँ से वासा डिफरेंशिया ऐसे स्टार्ट हो जाती है, तो यूरेटर के ऊपर से कोइल होकर सेमिनल वेसिकल में खुलती है जाके। अब इस ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, अगला जो ऑर्गन है हमारे पास थर्ड, जिसको हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। सिंगुलर को वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस, ये सिंगुलर हो गया। और प्लूरल को वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। और जो एपिडिडमिस है बच्चों, ओपन्स इनटू द थिक मस्कुलर ट्यूब, एपिडाइडिमिस
opens into a thick tubule. Tubule means ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है which is muscular tubule, which is muscular, ये मस्कुलर होती है, ठीक है ना, एंड कॉल्ड वासा डिफरेंस. कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं. वास डिफरेंस ये बोलो. और प्लूरल में इसको दूसरा हम नाम देते हैं स्पर्म डक्ट भी इसको हम कहते हैं कई बार. क्या कहेंगे? स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट इसलिए बोला क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना उसको ये कंडक्ट करता है, ठीक है ना. और याद रखना जब मेल की नसबंदी होती है जिसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, जिसको हम वासेक्टोमी कहते हैं, मीन्स वासा डिफरेंस कट करते हैं उसमें, कि यहीं से उसमें कट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे. आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, इसलिए यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्पर्म कैरी करते हैं तो इसी ट्यूब में कट लगा देते हैं और उसको अलग अलग करके बांध देते हैं, जिससे अब क्या होगा, जो स्पर्म है ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट ही नहीं होगा, और स्पर्म कंडक्ट नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन के चांस डिक्रीज हो जाते हैं. तो ये वासा डिफरेंस का नाम स्पर्म डक्ट इसलिए है बिकॉज इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द, यू कैन से, सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना. और अब बात करते हैं जो वासा डिफरेंस है, इट इज अराउंड अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग. वासा डिफरेंस is 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबाई इसकी होती है. एंड आफ्टर दैट जो वासा डिफरेंस है या वासा डिफरेंस है की जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, वासा डिफरेंसिया ऑफ द टू साइड्स एंटर द बॉडी, कि इधर से भी एंटर हो रही है तो दूसरी साइड से भी एंटर होगी, क्योंकि दो टेस्टिस होते हैं ना, तो ये बॉडी में एंटर करती है एंड रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना. तो वासा डिफरेंसिया enters the body from two sides, दोनों साइड से एंटर कर रही है. देखो इधर से भी एंटर कर रही है और उधर से भी एंटर करेगी, ठीक है ना. एंटर्स फ्रॉम द बोथ साइड एंड रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द, एंड रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द, और इसको डक्ट कहाँ कहाँ से मिलेंगी? सेमिनल वेसिकल से. कहाँ से मिलेगी? सेमिनल वेसिकल. वहाँ से इसमें डक्ट आके इसमें मिल जाएगी. आप देख रहे हैं कि जो सेमिनल वेसिकल है उससे एक डक्ट निकली जो इस सेमिनल वेसिकल इसके वासा डिफरेंसिया के साथ अटैच होगी, और वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है विच फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं. वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. एक इजैकुलेटरी डक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे कि यूरिनोजेनिटल डक्ट है, उससे पहले देखो इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, इधर सेमिनल वेसिकल ज्वाइन हुई और यहाँ पर इससे मिलके यूरिनेट ट्रैक से मिलके यहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट पार्ट बन जाता है इन द रीजन ऑफ द, यू कैन से, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना. फिर जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है रिसीव्स सीक्रेशंस ऑफ द, यू कैन से, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, एंड देन एंटर इनटू द पेनिस टू ओपन एट इट्स टिप. टिप तक पहुँच जाता है जिसको हम कॉमन यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो हमारे पास यूरिनोजेनिटल डक्ट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट रिसीव्स, ठीक है ना, सीक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड,
देख रहे हो आप डायग्राम में, कोपर ग्लैंड की सिक्रीशन है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है, सेमिनल वेसल की सिक्रीशंस हैं, एंड देन एंटर टू द पेनिस, एंड देन एंटर्स टू द पेनिस, और पेनिस में एंटर कर जाती है, देखो ब्लू कलर की पेनिस के अंदर एंटर कर रही है, एंटर टू द पेनिस टू ओपन एट द टिप, टू ओपन एट द टिप, और बाहर यहाँ टिप पे आप देखो ये ओपन हो रही है, जिसको हम पेनिस ओरफाइस बोल सकते हैं या पेनिस की ओपनिंग बोल सकते हैं, जिसके थ्रू यूरिन और यू कैन से स्पर्म्स दे आर कंडक्टेड। ओके बेटे, नाउ नेक्स्ट ऑर्गन वी विल डिस्कस, दैट इज सेमिनल वेसिकल। फोर्थ ऑर्गन इज सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड की तरह काम करता है बच्चों, फोल्डेड सा स्ट्रक्चर है, आपके सामने है, हमने इसकी बाउंड्री फोल्डेड बनाई हुई है। तो दे आर पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड्स, क्या है, पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड्स, कि लोब्यूल लाइक है, लोब्यूल्स बने हुए हैं इसमें, लोबुलेटेड हैं, एट दैट प्रोड्यूस 60 to 70%, दैट प्रोड्यूस 60 to 70% कि जो सीमन होता है ना, सीमन का जो प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें स्पर्म आता है, उसको बोलते हैं सीमन प्लाज्मा। प्रोड्यूस 60 to 70% सीमन प्लाज्मा, क्योंकि बेटे स्पर्म को कोई तो मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो यहाँ जो सीमन प्लाज्मा है इसके अंदर स्पर्म एक जगह से, मीन्स यहाँ से स्पर्म चला ट्यूब के थ्रू, लेकिन यहाँ आके उसके अंदर ये जो सीमन प्लाज्मा है ये ऐड हो जाएगा, और सीमन प्लाज्मा, ठीक है ना, वो 60 to 70% होगा, और सीमन प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, नरिश करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, ठीक है ना। सीमन प्लाज्मा हैविंग, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना, जो उस स्पर्म को क्या करेंगे, नरिश करेंगे, एंड अदर केमिकल्स फॉर, एंड अदर, ठीक है ना, अदर केमिकल, और ये केमिकल क्या काम करते हैं, फॉर नरिशिंग एंड फॉर नरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग, किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्पर्म को, उसको नरिश भी करेंगे और स्पर्म को स्टिमुलेट भी करेंगे। तो इसलिए जो सीमन प्लाज्मा है इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना, एंड इट इज़ विस्कस एंड अल्कलाइन नेचर। क्या होता है ये फ्लूइड जो होता है, जो सीमन प्लाज्मा है, सीमन प्लाज्मा इज विस्कसी फ्लूइड होता है एंड अल्कलाइन भी होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, विस्कसी फ्लूइड है एंड अल्कलाइन इन नेचर, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आता है बच्चों, आप देखिए ध्यान से, हमारे पास फिफ्थ ग्लैंड आता है फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों ये सिंगल होता है, ये कभी पेयर में नहीं होता, याद रखना। इट इज सिंगल लार्ज पिरामिडल, इट इज सिंगल लार्ज पिरामिडल, पिरामिड की शेप का है, ठीक है ना, पिरामिडल ग्लैंड इन द एरिया ऑफ, ग्लैंड इन द एरिया ऑफ, एरिया आप देखिए कहाँ पे है, जहाँ पे जो वासा डिफरेंस है, जो सेमिनल वेसिकल है, और उधर जो सिक्रीशन
एक ट्यूब्यूल जो यूरिनोजेंटल सिस्टम से आती है या यूरिनी ब्लैडर से जो आती है। एरिया ऑफ यूनियन ऑफ यूरेथ्रा, यूनियन ऑफ यूरेथ्रा जो यूरिनी ब्लैडर से आ रही है यूरेथ्रा, उसके साथ यूनियन करता है विद इजैकुलेटरी डक्ट, विद इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, वहां इस एरिया में ये प्रेजेंट होता है। अब ये भी क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज थिक, सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड इज थिक, और दूसरा मिल्की होगा, थिक होगा, मिल्की एंड अल्कलाइन, थिक एंड अल्कलाइन, एंड इट कंटेन केमिकल एसेंशियल फॉर, एंड it contain chemicals essential for motility of sperms। मोटिलिटी का मतलब कि जो स्पर्म की जो मोटिलिटी या मोबिलिटी रहेगी वो किसके कारण हो जाएगी, कि जो केमिकल इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सीक्रेट होंगे, ठीक है ना, उनके कारण उसकी मोटिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एंड द सिक्रीशन फ्रॉम, इसकी जो सिक्रीशन है, दैट फॉर्म द 20 to 30% ऑफ द सिक्रीशन ऑफ, यू कैन से, सीमन प्लाज्मा। द सिक्रीशन फॉर्म्स 20 to 30% ऑफ सीमन प्लाज्मा, कि 20 से 30% जो सिक्रेशन होगी सीमन प्लाज्मा की, वो क्या होगी, वो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन रहेगा। अब दो टर्म हमने यहाँ इस्तेमाल की, एक तो हमने टर्म इस्तेमाल की सीमन की, भी सीमन है क्या, सबसे पहले उसको जान लेते हैं, क्योंकि अगला ग्लैंड हम कॉपर्स ग्लैंड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ, उससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि सीमन क्या है या स्पर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए कि सीमन है क्या। व्हाट इज सीमन इज, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सीमन प्लाज्मा कर रहे हैं, लेकिन पता तो नहीं है सीमन प्लाज्मा क्या है। अभी आपको बताया कि सीमन प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर स्पर्म्स आते हैं और उनको नरिशमेंट मिलती है, उनकी मोटिलिटी इंक्रीज होती है, उनके लिए वो एक तरह से ऐसा कह लो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, मीडियम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू स्पर्म्स टेस्टिस से यू कैन से ट्रांसपोर्ट होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इट इज अ मिल्की विस्कस, इट इज मिल्की मिल्की होता है, विस्कस होता है, अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड कैसा है बच्चों, अल्कलाइन है, ठीक है ना, एंड इजैकुलेटेड बाय मेल, इजैकुलेटेड बाय मेल मीन्स इसको मेल सीक्रेट करता है या मेल इसको सीक्रेशन करता है ड्यूरिंग ऑर्गज्म और प्लेजर, ड्यूरिंग ऑर्गज्म और प्लेजर, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मेटिंग करते हैं, उस टाइम में जो मेल है इसको इजैकुलेट करेगा, इसको सीक्रेट करेगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग ऑर्गज्म, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 2.5 to 4 ml, क्वांटिटी इज
2.5 to 4.0 ml। 2 से इनके 2 से लेके 4 ml के लगभग होती है, विच कंटेन 300 to 400, आंकड़ा याद रखा, 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स इसके अंदर होंगे। कई क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। तो सीमन प्लाज्मा का जो क्वांटिटी रहेगा टोटल वो 2.5 to 4 ml के लगभग रहेगा, जिसमें 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स वहां पर होंगे, ठीक है ना। एंड सीमन कंटेन फ्रक्टोज, सीमन कंटेन क्या क्या होता है उसमें, फ्रक्टोज होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे एंड सम अदर केमिकल होंगे, ठीक है ना। एंड यू कैन से सेवरल केमिकल्स फॉर एंड सेवरल केमिकल्स फॉर नरिशमेंट के लिए होंगे, किसकी, स्पर्म की नरिशमेंट करेंगे, ठीक है ना। एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कि स्पर्म है क्या। हम बार बार स्पर्म की बात करें, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ स्पर्म का होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टर्म आपको बताएंगे कि स्पर्म है क्या। देखिए बच्चों, जो स्पर्म है ये अपने आप में एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक मेल गैमिट है। क्या है? इट इज टाइनी माइक्रोस्कोपिक मेल गैमिट। सभी को पता है, माइक्रोस्कोप से इसको हम देख सकते हैं। ईच ऑफ विच कंटेन, ईच sperm consist of 3 parts। कि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है हेड, एक होता है मिडल पीस और एक होता है टेल। मीन्स हेड होगा, मिडल पीस होगा और तीसरा होगा टेल। ये 3 मेन पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं आपको डायग्रामेटिक इसको बता देता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि जब तक आपको विजुअलाइजेशन ना हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टर्म। और मेरी कोशिश तो बच्चों यही रहती है कि आपको विजुअलाइज कराई जाए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए जरा, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसका एक हेड होता है, ये ऐसे हेड होगा, फिर एक नेक होगी और फिर एक मिडल पीस होगा यहाँ बीच में, और मिडल पीस के साथ फिर यहाँ पर ऐसे टेल होगी। ऐसे, ठीक है। ये इसका टेल है, ये इसका मिडल पीस है और ये इसका हेड है, और यहाँ पर एक ये नेक भी होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो हेड रीजन है, हेड के ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। यहाँ ऐसे ये एक होता है एक एक्रोजोम, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्योंकि जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो जो एक्रोजोम एंजाइम है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये जो एग होगा उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करेंगे, पिनेट्रेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और जो हेड है, हेड का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हेड है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ये क्या है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, और इसको हम इसका न्यूक्लियस कह सकते हैं। और यहाँ पर होगा एक सेंट्रियोल, क्या प्रेजेंट होगा, एक सेंट्रियोल। ये नेक रीजन आ गया, और नेक रीजन के बाद आता है हमारे पास मिडल पीस। और यहाँ मिडल पीस में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर स्पाइरल, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ही यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो अगर हम हेड की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो हेड के क्या फंक्शन होते हैं, हेड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले अगर हम हेड को लिखें तो हेड क्या है, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। आपके सामने है, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। और हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और इसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, और यू कैन से न्यूक्लियस है, इसलिए इसको एक न्यूक्लियस की शेप हमने दी है। और इसके ऊपर एक कैप लाइक एक्रोजोम होता है, ए कैप लाइक एक्रोजोम इज प्रेजेंट on the top of the head, which consists of हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होंगे इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। एंड दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्प the sperm in penetration into the egg। कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको ये ऐसे क्लीव कर देगा, और स्पर्म का जो हेड है वो अंदर घुस जाएगा, ये हेड अंदर चला जाएगा और बाकी का हिस्सा बाहर रह जाएगा। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेड है उसका यही फंक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मिडल पीस। मिडल पीस अब देखिए बच्चों, जो मिडिल पीस है, जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द, यू कैन से, स्विमिंग पर्पज ऑफ द स्पर्म। मिडल पीस contain spiral mitochondria which provide energy for swimming in female रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि जब फ्लैजेला बीट करेगा, उसको बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा? ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है विच प्रोवाइड एनर्जी टू स्विम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है ना, ड्यूरिंग सर्च ऑफ एग। क्योंकि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म जाएगा तो सर्च करेगा कि एग कहाँ पे है।
क्योंकि एग को ही फाइनल डेस्टिनेशन है स्पर्म का और वो उस एग को फर्टिलाइज करेगा। नेक्स्ट आता है टेल, थर्ड पार्ट। अब जो टेल है बच्चों, इट इज द एंड पार्ट विच इज वेरी थिन एंड विच हेल्प इन द यू कैन से स्विम, द हेल्प करता है स्विम में टू यू कैन से ड्रैग द स्पर्म फॉरवर्ड लेके जाता है स्पर्म को। तो टेल क्या हुआ, टेल हेल्प द स्पर्म टू मूव फॉरवर्ड, टेल helps the sperm to move forward by beating of tail। वो टेल को बीट करेगा, ऐसे ऐसे हिलाएगा, ठीक है ना, और इससे मूवमेंट होगी, ठीक है ना। फीमेल गैमिट और एग टूवर्ड्स द फीमेल एग और ओवा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सीमन होगा या जो हम स्पर्म्स की बात कर रहे हैं वो होगा। अब लास्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमने रोका हुआ था कॉपर्स ग्लैंड पे, तो अब कॉपर्स ग्लैंड देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास है नेक्स्ट सिक्स्थ ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, और इसको दूसरा नाम हम देते हैं यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है जो पेनिस को और एक फीमेल यूरिनरी जेनिटल को ल्यूब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये ल्यूब्रिकेशन के लिए जो एक म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है ना। दे आर स्मॉल ग्लैंड्स, क्या है ये, दे आर स्मॉल ग्लैंड्स, बहुत छोटे आप देख रहे हैं, पेयर में होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल डक्ट, ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये आप देख रहे हो यूरिनोजेनिटल डक्ट है, इसमें ये ओपन होते हैं। देयर सीक्रेशन इज अल्कलाइन, देयर सीक्रेशन इज अल्कलाइन, ये अल्कलाइन सीक्रेशन देते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि जो इनकी सीक्रेशन है उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होती है। जब भी मैंने बोला ना कि जो ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, इट इज़ रिच इन म्यूकस, इट इज़ रिच इन म्यूकस, कि इसकी जो सीक्रेशन होगी, जो अल्कलाइन होगा, वो म्यूकस उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सीक्रेशन ल्यूब्रिकेट्स यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सीक्रेशन ल्यूब्रिकेट्स यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट को क्या करती है, ल्यूब्रिकेट करती है। एंड आल्सो न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये अल्कलाइन होती है, तो जब ये सीक्रेट होगा अपनी सीक्रेशन को, तो यहाँ से अगर यूरिन गया होगा तो ये एसिडिक हो जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने, क्योंकि अगर एसिडिक रहा मीडियम तो स्पर्म को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी, न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी। तो इसका मतलब क्या हो, जो कॉपर ग्लैंड है वो ऐसे सीक्रेशन देता है जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास ऑर्गन आता है, अब पेनिस की हम बात करेंगे। जो एक एक्सटर्नल यू कैन से सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है ना, जो कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा है, इट इज इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, मेल का इरेक्टाइल कॉपुलेटरी
ऑर्गन होता है। ठीक है बच्चों, इट्स टिप इज ब्रॉड। आप टिप देख रहे हो, ब्रॉड होती है। इट्स टिप इज ब्रॉड, चौड़ी होती है। एंड सेंसिटिव, बड़ा ही सेंसिटिव होती है। ठीक है, और सेंसिटिव होने के लिए उसको वहाँ पर उसकी टिप को हम बोलते हैं ग्लान पेनिस। क्या बोलते हैं? एंड इज कॉल्ड ग्लान पेनिस। एंड कॉल्ड, देख रहे हो आप, इसको ग्लान पेनिस बोला है। ये जो आउटर कवरिंग है, ग्लान पेनिस इसको बोलते हैं। ग्लांस पेनिस इसको हम बोलते हैं। सेंसिटिव है और ये एक स्किन से कवर्ड होता है। ठीक है ना, किससे कवर्ड होता है? एक स्किन से कवर्ड होता है, जिसको हम प्रेप्यूस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रेप्यूस। ये देख रहे हो ना, स्किन के फोल्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रेप्यूस उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कवर्ड रहता है। ठीक है ना, और ये इसको सेंसिटिव पार्ट को हमेशा सेंसिटिव रखता है और बाहर के एक्सटर्नल जो भी इंजरीज हैं उससे बताता है। अगर हम इंटरनली पेनिस को देखें, इंटरनली पेनिस के अंदर क्या होगा? वहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जिनको हम स्पॉन्जी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इंटरनली पेनिस ये आप देख रहे हो यहाँ पे, एक अंदर आपने एक मसल बनाई है, तो ये जो मसल है इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी टिश्यू। मीन्स यार स्पॉन्जी टिश्यूज के कॉलम्स होते हैं, इनमें ब्लड फिल हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यू कैन से पेनिस बिकम इरेक्टाइल। ठीक है ना, रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इंटरनली पेनिस हैज ए स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है ना, और जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये पेनिस को हेल्प करते हैं इरेक्ट होने में। ठीक है ना, और लास्ट पॉइंट है बच्चों, इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द सीमेन। इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सीमेन। सीमेन मैंने इसलिए बोला क्योंकि सीमन क्या है, उसके अंदर ही स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से सीमन बोल सकते हैं या स्पर्म भी आप लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। तो सीमन और यू कैन से स्पर्म into vagina of female reproductive system। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम अगले लेक्चर में फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे, विच इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस स्ट्रक्चर। क्यों कॉम्प्लेक्स इसको बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म्स को रिसीव करता है। ठीक है, फिर उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, फिर उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर उसी के अंदर जो जाइगोट बनता है उसके अंदर फिर इम्प्लांटेशन होगी, और फिर हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होगी, जो ऑफस्प्रिंग की जो फिटस बनता है उसकी डेवलपमेंट होगी फॉर 9 months। तो दैट स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वेट फॉर दैट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।